To start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most kind. Assalamu alaikum and very good morning to all my shining stars. I hope all of you are fine. My dear students, today we are going to do exercise of unit number 9. This is page number 101 of your textbook. Please open it. Beta, the first question is, find synonyms and antonyms of the following words in thesaurus. Beta, the words are given. You will find out the synonyms and antonyms and you will write them in the blanks. The first word is human. Synonym is mankind. Beta, you can also write more than one synonyms. You can write just one synonym, and if you want to write two synonyms, you can also write. Antonym is animal, natural, under nature, artificial, tasty, delicious, bad, cold, freeze, hot. So these were the synonyms and antonyms you will write on your book. Next question is reading for comprehension. Answer the following questions. Beta, these are the questions. You will solve these questions by yourselves on your book as a reading comprehension. Next is match the meaning correctly as an example. But some words are given here, so you will write the correct meaning. Elevation means height from the sea level. So you have read this word in your while you were doing reading. So elevation means height. So dash means longer than usual or expected. So longer, extended. Extended means longer. But a third one is dash means twisting around itself. Now what is the meaning of twisting? Winding. Dash means time spent in doing something that you enjoy. Layer. Okay, the time in which you enjoy it is called layer. But the next is figures of speech. Let's see what is figures of speech. A figure of speech is ornamental use of words. So these words means we use the words to make it beautify. It is a departure from the ordinary form of expressions and is used to increase the effectiveness of word in a sentence. बेटा इट्स मीन के ऑर्डिनरी फॉर्म से निकल के हम उसकी वर्ड्स की इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके लिए हम ये वर्ड्स फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, इफ़ वी से देयर आर 4 पिलर्स इन दिस बिल्डिंग, द वर्ड पिलर्स इज़ यूज्ड इन इट्स ऑर्डिनरी सेंस, बट व्हेन वी से फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस, द वर्ड पिलर इज़ यूज्ड इन फिगरेटिव सेंस. हेयर are simple illustrations of some important figures of speech commonly used. So here are some words which are commonly used. but figures of speech use होते हैं किसी words को beautify करने के लिए, ठीक है, ordinary sense से निकल कर उसको उसकी effectiveness को increase करने के लिए use होते हैं. Simile. Now what is simile? It is a figure of comparison in which two dissimilar things are compared which have however at least one point in common. ठीक है, अब ये फिगर ऑफ स्पीच है बेटे. ये वर्ड्स यूज़ होते हैं टू डिसिमिलर थिंग्स के लिए. मीन्स वो सिमिलर थिंग्स नहीं है, वो डिसिमिलर हैं, वो ऑपोजिट हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई पॉइंट कॉमन होता है. द सिमिले इज़ यूजली इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स एज लाइक, एज और सो. तो ये वर्ड्स यूज़ होते हैं सिमिली के लिए. ही रैन लाइक अ हेयर डाउन द स्ट्रीट. ठीक है, अब यहाँ पे हमने वो किस तरह भागता है, लाइक अ हेयर. हेयर किसको कहते हैं, खरगोश को. तो हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया लाइक कंपैरिजन के लिए. मून रोज अप इन द ईस्ट लाइक अ रोज. तो मून किस तरह, चांद किस तरह निकलता है, रोज की तरह. तो यहाँ पे हमने लाइक का वर्ड कंपैरिजन के लिए यूज़ किया. नेक्स्ट इज मेटाफर. A metaphor is an implicit comparison without using words such as like, as और so. बेटे ये मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें हम like, as और so के वर्ड्स यूज़ नहीं करते. In it the two objects of completely different nature are identified. इसमें
कम्प्लीटली डिफरेंट इन नेचर होते हैं, जिनके दरमियान कंपैरिजन के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब कैमल क्या है? शिप ऑफ द डेजर्ट। अब ये यहाँ पे कंपैरिजन किया है, लेकिन यहाँ पे हमने लाइक, सो और एज के वर्ड्स यूज़ नहीं किए। माई एल्डेस्ट सन इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली। Alliteration. This consists in the repetition of the same sound or syllables at the beginning of two or more words. For example, alliteration बेटा होता है किसी चीज़ की रेपिटेशन, किसी लेटर की, किसी साउंड की रेपिटेशन होना बार बार, उसको alliteration कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में आप देखें, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है वो सेम है, तो ये alliteration हो रही है, ये रेपिटेशन हो रही है। A strong man struggling with the storms of fate. अब देखें, strong as, struggling as, storms as. अब repetition हो रही है words की। A lot of learning lumbering in his head. अब यहाँ पे L की repetition हो रही है। Use similes to fill in the blanks. अब इन blanks को fill करने के लिए आपने बेटे simile यूज़ की हुई है। As faithful as dog, तो डॉग की तरह फेथफुल, लॉयल। एज रेड एज ब्लड, एज क्लेवर एज थ्रो, एज ग्रीन एज ग्रास, एज ब्राइट एज डे। ओके बेटा, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 104। क्वेश्चन इज नेम द वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। अब बेटा जितने भी पीछे आपने फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, अब आपने इनके फाइंड आउट करने हैं कि वो इनमें से वर्ड्स वो मेटाफर हैं, वो एलिट्रेशन है, या वो सिमिली हैं। आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उनके ऊपर आपने एलिट्रेशन, मेटाफर और सिमिली लिखना है। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। इनमें से जो टेल है वो बेटा मेटाफर है, ठीक है। इसके ऊपर आपने एम लिख देना, या आप कंप्लीट वर्ड मेटाफर लिखेंगे। एन ऑस्ट्रियन आर्मी ऑफुली अरेड, ऑफुली अरेड को अंडरलाइन करेंगे और ये भी मेटाफर है। योर फेस इज एज अ बुक वेयर मैन कैन रीड स्ट्रेंज लेटर्स। एज अ बुक मीन्स आप फेस को कंपेयर किया है बुक के साथ, तो ये एज लग गया यहाँ पे, तो ये सिमिली है, आप एस लिखेंगे। द शिप प्लॉज द सी, या ये भी मेटाफर है, प्लॉज द सी को अंडरलाइन करेंगे, ऊपर आप एम लिख देंगे। एरर्स लाइक स्ट्रॉज अपॉन द सरफेस फ्लोर, लाइक यहाँ पे आ गया तो ये सिमिली है, आप ऊपर सिमिली एस लिख देंगे। आ रीलिंग रोड रेम्बल्स राउंड द शाइन। अब बेटा यहाँ पे वर्ड्स की आर की रेपिटेशन हो रही है, सेम लेटर हर वर्ड में आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। बेटा नेक्स्ट इज इडियम्स। नाउ व्हाट इज इडियम? इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स द मीनिंग्स ऑफ विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। बेटे अगर सिंगल वर्ड को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका वर्ड डिफरेंट होगा, उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, लेकिन इडियम्स क्या है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स ज्वाइन होते हैं तो वो इडियम बन जाता है और उसका मीनिंग भी टोटली डिफरेंट होता है। इडियम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ लैंग्वेज। मैनी वर्ब्स व्हेन फॉलोड बाय अ preposition और adverbs acquire idiomatic sense as break down, ठीक है। अब ये दो वर्ड्स ब्रेक सेपरेट है, डाउन सेपरेट है। अब ये ब्रेक डाउन, जब दो वर्ड्स को हमने कंबाइन किया तो ये इडियम बन गया और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। कास्ट अवे, कम, बाय, एट्सेट्रा। फार एंड वाइड इज एन इडियम यूज्ड इन द लेसन, इट मीन्स एवरीवेयर, ठीक है। फार एंड वाइड जो है बेटे आपके लेसन में यूज़ हुआ है और इसका मतलब होता है एवरीवेयर, दूर और नज़दीक से, मीन्स हर जगह से लोग आते हैं। वी यूज़ इडियम्स इन सेंटेंसेस टू कन्वे द मीनिंग फोर्सफुली, ठीक है। हम फोर्सफुली किसी मीनिंग को कन्वे करना चाहते हैं तो हम इडियम्स को सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इडियम्स यूज्ड इन द सेंटेंसेस एंड राइट देयर मीनिंग। अब ये सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपने इनमें से इडियम्स को फाइंड आउट करना है, उनको अंडरलाइन करना है और उनका मीनिंग क्या है वो ऊपर आपने लिख देना है। ही डज़ नॉट नो इंग्लिश एट ऑल। अब यहाँ पे बेटा एट ऑल क्या है, ये इडियम है और इसका मतलब है बिल्कुल भी, वो इंग्लिश के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। द विलेजर्स रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई टू सी द थीफ। ह्यू एंड क्राई, चीखो पुकार करना, ठीक है।
He turned down my proposal. Turn down को अंडरलाइन करेंगे आप. He felt the place. He left the place bag and baggage. बोरिया बिस्तर समेत उसने जगह छोड़ दी. तो बैग एंड बैगेज यहाँ पे क्या है? इडियम. There is no such hard and fast rule in this matter. Hard and fast means पेचीदा. इसको अंडरलाइन करेंगे और ऊपर आप इसका मीनिंग लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस. बेटे यहाँ पे कुछ इडियम दिए हुए हैं. बेटे आप इन वर्ड्स को सेंटेंसेस, इन वर्ड्स के आप सेंटेंसेस बनाएंगे एंड यू विल राइट इट ऑन योर नोटबुक. फर्स्ट वर्ड इज डिस्पोज ऑफ, ज़ाया करना. डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन वेस्ट बीन्स. फॉल ऑफ, मुतफिक होना या गिर जाना. द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव फॉलन ऑफ. नॉक डाउन, कुचले जाना. ही वॉज नॉक डाउन बाय अ बस. नॉक्ड डाउन. लुक आफ्टर, ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स. मेक फॉर, हल्ला बोलना, धावा बोलना. पुलिस मेड फॉर द हाउस ऑफ थीफ. ये बेटे आप सेंटेंसेस अपनी नोटबुक पे लिखेंगे. बेटे नेक्स्ट है रीड दीज वर्ड्स अलाउड एंड मेक सेंटेंसेस. अगेन बेटे ये वर्ड्स हैं, इनकी साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है. आपने इनके मीनिंग वो सेंटेंसेस बना के अपनी नोटबुक पे लिखने हैं. स्टील, चुराना, चोरी करना. स्टीलिंग इज़ अ बैड प्रैक्टिस. और दूसरा स्टील क्या है? फौलाद मीन्स जिससे आप चीज़ें बनाते हैं. दिस डोर इज़ मेड ऑफ स्टील. पोल, खंबा. दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक पोल. और दूसरा पी और डबल एल पोल क्या है? वोट डालना. दे आर पोलिंग वोट्स. लूज, खोना. डोंट लूज होप. और दूसरा लूज क्या है? ढीला. LWSC लूज, ढीला. ही इज़ वेयरिंग अ लूज शर्ट. रूट, डोंट कट द रूट ऑफ ट्री. राउट, रास्ता. दिस इज़ द राउट टू कोयटा. बेटा नेक्स्ट इज पैराग्राफ. वी विल नॉट डू पैराग्राफ today, so we will skip it. But next is oral communication skills. This is a dialogue. You will do practice of it. But next is glossary. You will also learn glossary. You will learn these meanings of the words. Okay beta, this is all about today. Have a nice day. Allah Hafiz.